झालं. Good morning, students. This is Inorganic Chemistry for standard 12th. So now we will see the chapters related to Inorganic Chemistry for board exams. Now we have the chapter okay. Chapter number 7 from State Board textbook, Elements of Group 16, 17 and 18. Again, I must tell you this is very important chapter because there are many questions asked from this chapter in board exams. So आज हम लोग ये chapter discuss करने वाले हैं. First of all, you can have this electronic configuration of all the elements related to group 16, 17 and 18, in which group 16 elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Now see the electronic configuration. You must by heart the core electronic configuration of these elements which are asked in previous board papers. Now see what we have to do from this topic. We have certain questions regarding this chapter. So I will discuss those questions with you. See here this question. What are interhalogen compounds? Write the chemical reaction when chlorine reacts with a dry slate lime. Okay, this interhalogen compound is very important term. This is the topic of chapter 7, elements of group 16, 17 and 18.
properly group 17 elements, which are also known as halogens, or we have the compounds formed by the combination of these elements known as interhalogen compounds. See here, now see, we have this topic interhalogen compounds. So first we'll understand what is interhalogen compounds. See here, see, all the halogen molecules, ठीक है, halogen molecules are diatomic. They form binary compounds with hydrogen, with oxygen they form oxyacids, and with halogens they form interhalogen compounds. So we must have this definition of interhalogen compounds. Now see the definition of interhalogen compounds. All halogens belong to the same group. They have different electronegativities. Now the reason for forming interhalogen compounds is due to this difference in electronegativity, two or more halogen atoms combine to form species which may be ionic or neutral. यहाँ पे ध्यान देना, ionic or neutral बोला है. So the neutral molecules are called interhalogen compounds. एग्जाम्पल के लिए वी हैव क्लोरोफ्लोरीन और ब्रोमोफ्लोराइड. हियर वी हैव an interhalogen compound is a compound formed by a combination of atoms of different halogens. Now say there must be different halogen atoms, and for your information, see here we have a table having various types of interhalogen compounds. So we have the category, so chlorine, bromine and iodine. Fluorine is the most electronegative elements. So interhalogen compounds will have fluoride, chloride, bromide or iodide. Now classification of interhalogen compounds is we have type X, X dash, X, X3 dash, X, X5 dash and X, X7 dash. And we have other examples also here. Now we have the general characteristics of interhalogen compounds. So interhalogen compounds में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वहां पे ये दिया हुआ है. द कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज द halide of halogen. X stands for halogen. For example, in chlorofluorine or chlorofluoride, where the halogen having larger size is chlorine. So it is more electropositive than fluorine, and hence the interhalogen compound is named as chlorine monofluoride. Now see the name chlorine monofluoride. यहाँ पे chlorine जो है वो electropositive है. नेटवर्क नहीं क्या?
चलो ओके, so welcome once again. We were discussing about this topic. See, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इंडिविजुअल हैलोजन मॉलिक्यूल से। उसका रीजन एकदम क्लियर है कि इंटरहैलोजन कंपाउंड में ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसमें X डैश जो एलिमेंट है इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X that is less electronegative or more electropositive. While in X2 and X2 dash both atoms have same electronegativity, hence XX dash bond energy or enthalpy is less than the other bond enthalpies. So ये रीजन आप प्लीज याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन इन बोर्ड और इन एंट्रेंस एग्जाम्स। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, ऑल द इंटरहैलोजन, ये फिलिप्स के लिए आ सकता है, ऑल द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक। सो ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? सो यू ऑल नो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। सो इसमें फर्दर एक क्वेश्चन था अपने पास, write the chemical reaction when chlorine reacts with a dry slaked lime। ये क्लोरीन वाले टॉपिक में अगेन सेम चैप्टर से है। सो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसको हम देख लेंगे। See here, this reaction you must remember, chlorine reacts with a dry slaked lime। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि ये सारे रिएक्शन देख लेना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन में, खास करके ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे रिएक्शन विथ अमोनिया, इसमें बहुत बड़ा एक कैच है, जरा देखना। अमोनिया के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, सो अगर वो अमोनिया एक्सेस में है तो फॉर्म क्या कर रहा है? अमोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या फॉर्म कर रहा है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। सो सेम रिएक्टेंट बट डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन यू हैव एक्सेस ऑफ वन ओवर द अदर। तो इसलिए ये वाला रिएक्शन भी देखना। और 24 के पेपर में अपने पास ये क्वेश्चन आया है कि क्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विद ड्राई स्लेक्ट लाइम, सो वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे क्लोरीन जो है यहाँ पे कैल्शियम के साथ तो फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, एंड फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। प्लीज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इवन सोडियम के साथ देखना, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो भी फॉर्म क्या कर रहा है? मेटल का क्लोराइड, मेटल ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। सेम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड एंड वाटर, सेम पैटर्न है रिएक्शन का, बस खाली बैलेंस आप ध्यान में रखना। Again, we have another question from Inorganic Chemistry. Define lanthanide contraction. Write the balanced chemical equation when acidified K2Cr2O7 reacts with hydrogen sulfide. यहाँ पे ध्यान रखना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया है, आप इसको अगेन 26 में भी एक्सपेक्ट
कर सकते हो। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Now see here we have properties of F block elements। तो यहां पे आपको मिलेगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखना। The atomic and ionic radii decreases from lanthanum to lutetium. This is known as lanthanide contraction। इसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो यहां रहा वो डिटेल एक्सप्लेनेशन। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है उसकी प्रॉपर्टीज में आता है। तो जब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो आपको पता है कि वो डी ब्लॉक के सेक्शन में ही होता है। वहां पे आप देख लो, एज वी मूव अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज, तो अपने को पता है कि जब हम किसी अक्रॉस अ सीरीज और अक्रॉस अ पीरियड जब हम मूव करते हैं तो वहां पे डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई होता है। This steady decrease in the atomic and ionic radii is called lanthanide contraction। आगे दिया है as we move from one element to another, the nuclear charge increases by 1 unit and 1 electron is added, and the new electrons are added in the same inner 4s subshell, and thus the 4f electrons shield each other from the nuclear charge poorly owing to their diffuse nature। आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी जब हम बात करते हैं एफ और पी और डी और एफ ऑर्बिटल या उनमें प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनका अपना शील्डिंग पावर होता है, जिसके अंदर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग पावर जो है बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज और एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है कॉन्सिक्वेंटली, जिस वजह से यहाँ पे हम ये टॉपिक देखते हैं विच इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा है, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड न्यूक्लियर चार्ज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ईच 4f इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट द होल ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्ट्रैक्ट्स एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट। तो बस कॉन्ट्रैक्शन वाला टर्म याद रखना। ये जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये आपको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी दिखेगा जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को प्रॉपर स्टडी करोगे। Now another question we have, balanced chemical equation when acidified K2Cr2O7 reacts with H2S। तो यहाँ पे आप देखना इसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी आपको दिखेगा K2Cr2O7 का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में है ये रहा K2Cr2O7 reacts with H2S in form in the presence of an acid। तो फॉर्म क्या हो रहा है, अगेन हमेशा ध्यान रखना, whenever there is H2SO4 with a metal, तो you will have metal का सल्फेट K2SO4 and chromium in also another metal, तो अगेन क्रोमियम का सल्फेट, and then we have water because oxygen and hydrogen are there, and सल्फर जो है यहाँ पे H2S में से वो वहां पे देख लो हाइड्रोजन वहां से निकल गया है, तो सिर्फ सल्फर वहां पे बचा हुआ है। तो आप देख लेना यहाँ पे सीधी सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 टॉपिक है।
तो ये ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी सेम वही है, H2S इज ऑक्सीडाइज टू पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर। तो K2Cr2O7 या इसके साथ में दूसरा एक और कंपाउंड है हमारे उस चैप्टर में जो कि है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो यही उनका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये वाला रिएक्शन वहां पे क्वेश्चन में है, तो इसको अच्छे से रेडी कर लो। Again, we have so we will discuss some more topics from this chapter, elements of group 16, 17 and 18. So we have a topic trends in atomic properties of group 16 elements. So जब ट्रेंड की बात आती है तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो है इसमें एटॉमिक रेडियाई की बात होगी। तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ग्रुप का, बैटरी लो है लैपटॉप। तो हमें पता है एटॉमिक रेडियाई जो है इट इंक्रीज, यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप का, तो डाउन द ग्रुप अगर हम बोल रहे हैं so it increases down the group. सेकेंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जब बात करोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि नॉर्मली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जब आप देख रहे हो कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, मतलब आउटर शेल इज मूविंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इट बिकम्स इजियर टू रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप देख लो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
ओके। बट यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, वेन एवर वी टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम यहाँ पे ग्रुप 16 का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 15 से कंपेयर करने का मतलब क्या है और क्यों नेसेसरी है, तो उसको समझने की कोशिश करना। कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो देखना कैसे होगा। तो यहां पे ग्रुप 15 है और यहां पे ग्रुप 16 है। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो ग्रुप 15 का, तो वहां पे आपको दिख जाएगा NH2 NP3, and for group 16 it is NH2 NP4। सो पूरा केस यहां पे है NP3 और NP4 में। For NP3 we have 3 electrons, here we have 4 electrons। तो ऑब्वियसली यहां पे देख लो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसके आउटर शेल में यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल्स में वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है, इसका मतलब यहां पे वी हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड हियर ऑब्वियसली यहां पे हाफ फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, जिस वजह से यहां जो कॉन्फ़िगरेशन है ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है और इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 16। तो जब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16, ऑलवेज रिमेंबर आप ग्रुप 15 के साथ अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट जो होंगे 15 और 16 के, तो 16 का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो 15 से क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान रखना। Again we have third property as electronegativity। So in terms of electronegativity again same case है कि जैसे ही एटॉमिक साइज और रेडियाई इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर होंगे न्यूक्लियस से, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होगी या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगा डाउन द ग्रुप, बताइए आप लोग। यस, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसमें आप ऑक्सीजन के लिए याद रखना, ठीक है, ऑक्सीजन is the second most electronegative element। ओके, फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे यू ऑल नो, प्लीज से इट इन कमेंट्स। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लीज स्पेसिफाई। So now we have, यहां पे टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों में डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच रहा है, यानी पुल कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है और उस समय वो एनर्जी रिलीज करता है। तो प्लीज यहां पे देखना, ये कंफ्यूजिंग होता है, अच्छे से समझना। इन ग्रुप 16 and 17 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, एक ही कोई ग्रुप ले लो, ग्रुप 16 आप ले लो, तो ग्रुप सॉरी तो यहां पे जब हम ग्रुप 16 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हमको मालूम है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। बट आपको वो स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इन ग्रुप 16 oxygen has less negative electron gain enthalpy than sulfur। तो जरा उसको समझो वो कैसे होता है। हमने ये देखा था अब यहाँ पे स्टेटमेंट, ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी एलिमेंट, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसके सिस्टम से, जब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमको पता है कि सिस्टम से एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो एनर्जी का लॉस हुआ तो डेल्टा एच हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो बस वो जो नेगेटिव है इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो जब हम वो देखते हैं एनर्जी रिलीज होना, तो लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, किससे, सल्फर से। तो उसका रीजन आप समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक साइज क्या है, सल्फर से काफी कम है। अगर ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, तो यहां पे ऑक्सीजन एंड सल्फर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है इट इज 1s2 2s2 2p4 and here we have sulfur 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, but instead of 3p4 we have 3d also. It is not filled, it is vacant, but वहां पे d ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात होती है ऑक्सीजन में, तो वहां पे
वो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है पी ऑर्बिटल में, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल में गेन होगा, लेकिन यहाँ के पी ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, वो ज्यादा बड़ा होगा किससे, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से। तो वो थोड़ा इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को वहां पे गेन होने में, ऑक्सीजन के केस में वो डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। उसके बाद प्रॉपर है कि जो हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए था, ऑक्सीजन से सल्फर का कम होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन का कम है, सल्फर का ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है या ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, तो उसको आप अच्छे से रेडी कर लो। ओके, ना यहां पे ये ध्यान रखना है, दिस क्वेश्चन ये आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन, आंसर आपको बताना है। तो इसमें ध्यान से समझना कि पूरा जो गेम है, पूरा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है कि फ्लोरीन हैज स्मॉल एटॉमिक साइज देन क्लोरीन। एटॉमिक साइज अगर कम है तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें बात ये होगा कि लोन पेयर ऑन ईच फ्लोरीन एटम्स इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर, ओके, एंड मेक द फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड वीक। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन का, तो इसमें आप देख लेना फ्लोरीन के केस में यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, वो देखना फ्लोरीन के केस में ये लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है। उसका रीजन है कि जो फ्लोरीन एटम्स है उनके जो ऑर्बिटल्स है वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि बहुत ही स्मॉल इन साइज है, तो बहुत ज्यादा पास होते हैं। जब बहुत ज्यादा पास होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इस वजह से जो बॉन्ड है वो वीक होता है। वही आपको ध्यान में रखना है। Thus it require less amount of energy to break the FF bond. But chlorine में क्या हुआ, the lone pair on each chlorine atoms are at a larger distance, क्योंकि क्लोरीन के आउटर शेल जो p ऑर्बिटल है क्लोरीन का, वो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से काफी बड़ा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोल सकते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो उसमें बहुत कम है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। अब इसके बाद जो है इस चैप्टर से आप समझ लो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एनोमलस बिहेवियर। आपको ये पता ही है हर ग्रुप का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है जो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसकी प्रॉपर्टी अदर ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा मैच नहीं करती। उसका रीजन यहाँ पे ऑब्वियस आपको ध्यान में रखना है कि उन एलिमेंट्स का साइज, एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड उसके बाद जो बहुत ज्यादा एक यूनिक जो डिफरेंस है एलिमेंट्स में वो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंसी शेल।
ओके, तो यहां पे हम देखते हैं ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में, दोनों में देखना, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और ग्रुप 17 में फ्लोरीन, दोनों का बिहेवियर क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, जिसे हम एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या टॉपिक है उसमें? सबसे पहले तो एटॉमिसिटी है। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, बाकी के एलिमेंट्स डायटोमिक से पॉलीएटॉमिक भी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बाकी के सब डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन में आपको -2, -1 एंड +2 मिलेगा। +2 जो है वो फ्लोरीन के साथ मिलता है OF2 मॉलिक्यूल में। यहां पे देखो लिखा भी है कि ऑक्सीजन फॉर्म्स ओनली OF2 विद फ्लोरीन व्हाइल सल्फर फॉर्म्स SF6। तो यहां अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई है। ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 का है, लेकिन यहाँ पे +6 का है। तो अदर एलिमेंट्स में आपको -2, +2, +4, +6 भी मिलता है। और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन के लिए, या फिर एनोमलस बिहेवियर क्यों है? तो ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अदर एलिमेंट्स में है, बाकी ऑक्सीजन में नहीं है। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स आएगा। तो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन जो कि वाटर, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, बाकी के हाइड्राइड्स जो है वो गैसेस है। तो यहाँ पे कॉमन कोवैलेंसी की बात करेंगे, तो कॉमन कोवैलेंसी ऑक्सीजन का 2 है। आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड बी स्टेबल। So in rare case it is 4, but for other members of group 16 the covalency can exceed 4. So the anomalous behavior of oxygen के रीजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको आप ध्यान रखना। चाहे एनोमलस बिहेवियर किसी का भी हो, आपको ये रीजन वहां पे ध्यान में रखना है। चाहे आप ग्रुप 13, 14, 15, 16 किसी की भी बात करो, 17, चाहे कोई भी ग्रुप ले लो, ये रीजन वहां पे आएगा। एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स मेन रीजन। सेकेंड टॉपिक इसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन है, वो अच्छे से प्रिपेयर करना। सेम जैसे ऑक्सीजन है वैसे ही फ्लोरीन का है, विथ फ्यू डिफरेंस। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें आ जाएगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड देन वी हैव एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी जो है आपको ग्रुप 16 में देखने को मिलेगा, जो कि आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर जो है वो ये टेबल आप प्रिपेयर कर लेना एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर का। तो वी हैव रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर भी बोलते हैं। ओके और इसके बाद यहां ये क्वेश्चन आप कंफर्म मान लो आपके पेपर में, जो कि ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर जब आप पाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला ध्यान रखना H2SO3 है, एंड देन वी हैव सल्फ्यूरिक, ये ज्यादा फेमस है, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। दोनों के जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसमें देखना ध्यान से, यहाँ पे H2SO3 है तो सल्फर का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, लेकिन H2SO4 में दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन एक ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। नाउ
यहां पे ये जो आप देख रहे हो, यहां पे नेमिंग में थोड़ा गड़बड़ है कि ये वाले कंपाउंड का नाम यहां नहीं दिया है, लेकिन ऑब्वियसली आपको यहां मिलेगा, जो कि है डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंपेयर करते हैं। देखना, ये H2SO4 है, तो ये सेम दो H2SO4 मॉलिक्यूल एक साथ बॉन्डेड है, इसलिए आप नाम रख सकते हैं डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला प्लीज देखना, इट इज H2S2O7। सो वी हैव H2S2 एंड O7 है वहां पे 2 4 5 7। स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना। और यहां पे नेक्स्ट आप देखना, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो रहा है, देखो यहां पे परऑक्सी लिंकेज है, देखो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिंकेज है। बाकी स्ट्रक्चर जो है H2SO4 के जैसा ही है, फॉर्मूला है H2SO5, सेम H2SO4 का स्ट्रक्चर, लेकिन एक ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा एक्स्ट्रा है, हमने वहां पे इसको यहां पे प्लेस करा हुआ है। ओके, नाउ परऑक्सी मोनो, यहां पे देखना परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में जो परऑक्सी लिंकेज है वो दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में है, एंड फॉर्मूला H2S2O8 है। यहां पे ये ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड है इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिंकेज जो परऑक्सी लिंकेज है, और इसके बाद आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो नाम जो है वो सल्फर के लिए है, तो आप देख लो यहां पे एट द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन यहां पे है सल्फर। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 है, यहां पे H2S2O3 है, तो ये है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जो कि आप बोर्ड पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देन इसके बाद आता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो नाम जरा देखना, हैलोजन फॉर्म करते हैं सेवरल ऑक्सो एसिड्स, ओनली 4 ऑक्सो एसिड्स हैव बीन आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। तो अब ये स्टेटमेंट्स है जो कि फिलअप्स में आ सकते हैं, वो नाम देखना क्या है, हाइपोफ्लोरस एसिड, पर क्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड एंड मेटा पर आयोडिक एसिड। ये 4 ऐसे एसिड हैं जो कि अपने प्योर फॉर्म में आइसोलेट किए गए हैं। बाकी आप इसमें एक और चीज देखना, अदर्स आर स्टेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करो, तो द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द हैलोजन ऑक्सो एसिड्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। प्लीज ये वाला स्टेटमेंट आप अच्छे से मार्क करके रखो अपने टेक्स्ट बुक में या फिर नोट्स में, ऐसे नोट्स आपको लिंक में मिलेंगे, प्लीज आप ध्यान रखना। द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द हैलोजन ऑक्सो एसिड्स इंक्रीजेस with the increasing oxidation state of halogen। इसके एग्जांपल के लिए देखना, HClO और HClO4 है, तो ClO में HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो यहां पे ये -1 पे है, लेकिन यहां पे कितना है, सॉरी ये +1 पे है, और यहां पे कितना है HClO4 में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये +7 पे है। तो जरा इसको चेक करो, और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ दिया भी है, और उसका स्ट्रक्चर देखना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास है, उसे हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख लेना, ये +1 पे है। यहां जो क्लोरीन है देख लेना, ये
HClO2 है तो यहाँ पे 1 2 3 है तो +3 पे है, यहाँ पे HClO3 है, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 तो +5 पे है और यहाँ पे +7 पे है। तो जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये हाईली एसिडिक कंपाउंड है जो कि है परक्लोरिक एसिड। से जो मैं डिस्कस कर रहा था एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन जुलाई 24 के पेपर में है विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको रेडी करना। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, हाउ इज डाइऑक्सीजन प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी फ्रॉम KClO3। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, पोटेशियम क्लोरेट का, एंड राइट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट दिस। ये आपका अलग ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अगेन मार्च 25 के पेपर में भी है, राइट एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। Again, here we have draw the structure of sulfuric acid and thiosulfuric acid. तो सेम जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर वैसे ही थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे उसमें सल्फर है।
See here we have the question of why does fluorine show anomalous behavior in group 17 elements. सेम जैसे ऑक्सीजन है वैसे फ्लोरीन का है. ओके तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो उस चैप्टर में वही है जो हमने भी डिस्कस किया है. See प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम क्लोरेट. तो पोटेशियम क्लोरेट में करना क्या है, सिर्फ उसका डीकॉम्पोजिशन होगा. देखना यहाँ पे तो डीकॉम्पोजिशन कैसे करना है, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो आपको मिल जाएगा KCl एंड ऑक्सीजन गैस. बैलेंस करके लिखना है. यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन है, उसके बारे में आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखना है. जैसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो हाइपोहैलस, +3 है तो हैलस, +5 है तो हैलिक, +7 है तो परहैलिक. ये जनरल नेम है, उसको अच्छे से ध्यान में रखना. We have this chapter transition and inner transition elements. So inner transition element की जब हम बात करते हैं वो तो इसके बाद आएगा. ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब आपको डी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान में रखना है, बट उसमें एक पॉइंट है जो आपको सबको समझना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे. उसके लिए आपको ये जरा सेक्शन देख लो. See, zinc has completely filled n-1d orbital. से आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव अ डिफरेंट सेशन फॉर दैट, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में मिलेगा. तो आज आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लेस कीजिए प्लीज.
यहाँ पे मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था कि सिंस जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट, सो एंड यहाँ पे देखना 3d10 4s2 एंड 3d10 इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। प्लीज ये ध्यान रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बात सही है, लेकिन उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट ग्रुप आप देखते हो 12th ग्रुप में, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करना है। ऑन द सेम ग्राउंड कैडमियम एंड मर्क्यूरी, सेम देखना उसी ग्रुप में आपको मिलेगा डी ब्लॉक में, यहां पे देखना जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ये भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जब आप यहां देखते हो कॉपर इन द एलिमेंट्री स्टेट 3d10 4s1 contains filled 3d orbitals, but in +2 oxidation state it has partially filled 3d orbital, that is 3d9, hence copper is a transition element. तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट हम वहां बोलेंगे जहां पे आपको कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे दिया हुआ है 3d 4d 5d एंड 6d सीरीज का। ओके, अब यहां पे देखना एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम डिफर्स फ्रॉम द ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। यहां पे देखना कि इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखना इधर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3d सीरीज, इसको मैं ऐसे बता देता हूं। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स observed and expected इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्रोमियम का। Chromium atomic number 24. So we have configuration as कोर कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्रोमियम के लिए, यहां से आप उसे देख सकते हैं। देखना क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, यह हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखना, ये 3d4 4s2 है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 3d4 है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इधर शिफ्ट होगा तो अपने को मिलेगा 3d5 4s1, जो कि ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें यहां पे s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, बट यहां देखना दोनों हाफ फिल्ड है, और आप सबको पता है कि हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। सेम केस आप देखोगे कॉपर में, कॉपर के लिए भी देखना 3d9 4s2 है, ऑब्वियसली एक ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा तो मिलेगा 3d10 4s1। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं 3d सीरीज में जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों अलग है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है,
इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम सर्च करेंगे अपने पेपर्स में। See here, it is March 25 paper, March or July. अगेन से यहाँ पे डी ब्लॉक अपना चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन आया है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। आपको याद होगा हमने बात की थी अभी क्लोरीन के रिएक्शंस की, तो वहां पे अपने को देखा था कि अमोनिया अगर एक्सेस में, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया अगर एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, तो वो रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 25 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, नोट्स में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, तो ये सिमिलैरिटी है और यहाँ पे डिफरेंसेस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस आप वो लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। वैसे डिफरेंस है क्या, से लैंथेनाइड शो अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, लेकिन एक्टिनाइड दिखा सकता है +3, +4, +5 एंड +6 with +7 also. Lanthanoids do not form complexes easily, but actinoids have a greater tendency to form complexes with ligands such as thioethers. All lanthanoids are non-radioactive except promethium, but all actinoids are radioactive in nature. Lanthanoids do not form oxocations, but actinides form oxocations. Most of the lanthanides are colorless, whereas actinides are colored ions. तो ये चीज आप ध्यान रखना, वो उस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, जो भी आपको मैंने दिखाया था कॉपर है क्रोमियम वाला, वो पूरा लाइन है, वही आपको लिखना है उसमें। ये क्वेश्चन है यहाँ से, कैलकुलेट स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल इज 26। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए।
सेम क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर 25, वहां पे एटॉमिक नंबर 26 था आई थिंक। यस, एटॉमिक नंबर 26 है। तो आपको खाली करना क्या है ऐसे केसेस में, जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, तो देख लो फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इन ब्रैकेट n+2 bm बोर्स मैग्नेटॉन, उसका फुल फॉर्म है। तो n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और वहां पे डाइवैलेंट भी बोला गया था, m2+ आयन की बात हुई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो इसमें जैसे यहाँ पे आप इसको अभी सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकते हैं इफ यू वांट, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर 25 हमारे लिए है वो 26, हमें खाली करना क्या है, यहाँ पे 25 है तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा यहाँ पे 6। तो नॉर्मली अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हम फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसमें राइट कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो ट्रांजिशन है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टॉपिक है, गैडोलीनियम का बहुत बार डिस्कशन होता है, ठीक है। तो उसमें आप वो क्वेश्चन रेडी करना। अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, राइट द रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज्ड टू कन्वर्ट Fe2O3 to Fe in the reduction zone of blast furnace। ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। देख लो, जोन ऑफ रिडक्शन, ये वाला सेगमेंट आपको देखना है कि उसको कैसे रिड्यूस किया गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है राइट द रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज्ड टू कन्वर्ट Fe2O3 to Fe in the reduction zone of blast furnace। तो हमें ध्यान रखना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ये देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोक्साइड है, ओके, और कार्बन भी है। तो ये आपको रिएक्शन के साथ लिखना है, ध्यान में रखना है इसको। ये टेबल आप रेडी कर लेना, इसमें बहुत सारा कोर आपको नॉलेज मिल जाएगा। जोन ऑफ रिडक्शन यहां देख लें, रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन मोनोक्साइड है एंड रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन है। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स।
सी हियर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन। ये आपको उस चैप्टर से मिला हुआ है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। अगेन मेटलर्जी वाला जो टॉपिक है चैप्टर 8 में, तो पायरोमेटलर्जी एंड रोस्टिंग, ये दोनों का डेफिनेशन लिखना बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा इसमें डिस्कशन है नहीं। Write the conditions of color of transition metal ion and write the alloy used in Fischer-Tropsch process। तो ये आपको ध्यान में रखना है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो ये टॉपिक आपको देखना है। कलर फॉर्मेशन, तो क्वेश्चन हमारा यहां पे है, write the conditions of color of transition metal ions। तो कंडीशंस में आपको ये लिख लेना है, द कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद ये टॉपिक को आप उसमें मर्ज कर देंगे। यहां पे color of a transition metal ion relates to, or it is because presence of unpaired d electrons, dd transition उसमें होता है, then nature of ligand attached to metal ions and geometry of the complex formed by the metal ions। तो यहां पे ये ध्यान रखना है। एक और रीजन यहां लिख सकते हो, color of transition metal ions may arise due to charge transfer। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है, MnO4 minus ion has an intense purple color। यहाँ पे an electron is momentarily transferred, प्लीज याद रखना ये वर्ड, momentarily transferred from oxygen to metal, thus momentarily charged, changing O2 minus to O minus and reducing the oxidation state of manganese from +7 to +6। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांजिशन हुआ वहां पे, the energy level of two different atoms involved should be fairly close। So colors of chromate, it is dichromate, chromate और copper oxide, ये सारे कलर जो है ये कैन बी एक्सप्लेन थ्रू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। तो ये आंसर आप वहां पे लिखेंगे। alloy used in Fischer-Tropsch process, तो ये मेटालर्जी में ये alloy फॉर्मेशन में आ जाएगा।
एंड फ्रॉम दिस चैप्टर यहाँ पे दो सब्सटेंस, दो कंपाउंड्स है जिनके बारे में आपको थोड़ा स्टडी करना है। आप बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से, जो कि ये टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनीज, कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम। For manganese it is potassium permanganate and for chromium it is potassium dichromate। इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे होगा, तो केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड से होगा। केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान में समझ लेना। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ KOH एंड पोटेशियम क्लोरेट, वहां पे फॉर्म हो रहा है क्या, देखो K2MnO4। KMnO4 रहेगा तो पोटेशियम पर मैंगनेट है, ये यहाँ पे पोटेशियम मैंगनेट प्रोड्यूस हो रहा है। और वही पोटेशियम मैंगनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, द ग्रीन पोटेशियम मैंगनेट डिस्प्रोपोर्शनेट टू KMnO4 एंड MnO2। तो ये वाला रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से होता है, तो K2MnO4 का ऑक्सीडेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो भी KMnO4 यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखना है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4। तो एसिडिक मीडियम यहाँ दिया है, देखो कितने सारे रिएक्शंस हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन, देन ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ टू Fe3+, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे रिएक्शंस आपको रेडी करने हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड इन न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन मीडियम, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर आप देख रहे हो। सबसे पहले आपने देखा एसिडिक मीडियम में, उसके बाद आप देख रहे हो अल्कलाइन मीडियम में। एंड उसी तरह से K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन देखना है। उसी तरह से फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगेन सेम वही रहेगा कि उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। तो इसके अलावा जो है यहां पे है वो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7, तो इसको भी रेडी करना है। ये दो टॉपिक जो है, एक तो KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7, इसके क्वेश्चन इस बार के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी मैं बात कर रहा था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 रिएक्ट्स विद H2S, तो वो जो भी आपने देखा तो वही रिएक्शन है। सी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइड ओर, जो अभी आपने देखा था। ठीक है, तो अभी हम जो है मूव करेंगे
थर्ड चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल टर्म्स में आते हैं, आपको इजी टू अंडरस्टैंड है टॉपिक विथ सम कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय आयंस और मॉलिक्यूल। क्योंकि नाम ही इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसमें सेंटर पर मेटल एटम या उसका आयन होगा जो कि सराउंडेड बाय अदर आयंस और मॉलिक्यूल। एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, सी ये कीमोथेरेपी ड्रग है जो कि प्लैटिनम अमोनियम क्लोरीन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, प्लैटिनम मेटल आयन सराउंडेड बाय 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 2 क्लोराइड आयंस। एंड इसी के केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सेंटर पे क्या रखा है, प्लैटिनम आयन सराउंडेड बाय 2 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 2 क्लोराइड आयंस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द डोनर नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स ऑफ द लिगैंड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू एंड फॉर्म बॉन्ड्स विथ प्लैटिनम। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये जो लिगैंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अटैच होते हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिगैंड की बात आएगी। तो लिगैंड आपको कैसे क्लासिफाई करना है, मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला है मोनोडेंटेट लिगैंड्स। इसको हम क्या बोलेंगे, अ मोनोडेंटेट लिगैंड इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। प्लीज ध्यान में रखना, मोनोडेंटेट बोला है तो लिगैंड इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर, मोनो है इसलिए सिंगल डोनर एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल देखो, द लिगैंड्स क्लोराइड आयन, यहाँ पे OH माइनस दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन एंड साइनाइड आयन अटैच्ड टू मेटल हैव इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। हम सब जानते हैं कि क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब उनके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखो ये सारे जो लिगैंड्स है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हैविंग लोन पेयर ऑन क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, क्लोरीन पे वी हैव 3 लोन पेयर। इसके बाद आता है पॉलीडेंटेट लिगैंड। तो ऑब्वियसली मोनोडेंटेट में सिंगल डोनर है, यहाँ पे पॉलीडेंटेट लिगैंड हैज 2 और मोर डोनर एटम्स लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे देखो इथिलीन, डायमाइन एंड ऑक्सलेट आयन। तो यहाँ देखिएगा इथिलीन डायमाइन बाइंड्स टू मेटल यूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच ऑफ इट्स 2 नाइट्रोजन्स। क्योंकि डायमाइन है ना, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आया जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि उसका लोन पेयर है वो उसको डोनेट कर सकता है, इसलिए पॉलीडेंटेट में आ गया। यहाँ पे ऑक्सलेट आयन अगर आप देख रहे हो तो अपने पास देखो मल्टीपल ऑक्सीजन एटम्स है, तो ऑक्सलेट आयन यूटिलाइजेस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच ऑफ इट्स नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स अपॉन लिंकिंग विद द मेटल। इसके अलावा इथिलीन डायमाइन, यहाँ पे नाम देखिएगा इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, जिसका अपन EDTA, बहुत ही फेमस पॉपुलर नाम है ये EDTA, बाइंड्स टू मेटल आयन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 4 ऑक्सीजन and 2 nitrogen atom. So it is a hexadentate ligand. अब आप नॉमेनक्लेचर में आएंगे तो मोनो में तो एक ही है, पॉली में अब 2, 3, 4 के हिसाब से आपको नाम मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेना 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आ गया हेक्साडेंटेट लिगैंड। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कैसे है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये रहा इथिलीन डायमाइन का 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टेट्रा एसीटेट आयन है ये। इसके अलावा आपको पढ़ना होता है एम्बीडेंटेट लिगैंड, द लिगैंड विच हैव 2 डोनर एटम्स एंड यूज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ईदर डोनर एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल आयन आर एम्बीडेंटेट लिगैंड्स।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिंक्स टू मेटल आयन थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों में से किसी एक से वो हो सकता है। तो यहां देख लेना, नाइट्रोजन से भी हो पाएगा या ऑक्सीजन से भी हो पाएगा, तो ऐसे लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेंट लिगैंड्स। सिमिलरली thiocyanide has two donor atoms, nitrogen and sulfur, either of which links to metal depicted as the structure given. तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट। इसके बाद हम टर्म्स कौन से यूज करते हैं, तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The central metal ion and ligands linked to it are enclosed in a square bracket. This is called a coordination sphere, which is a discrete structural unit. ये किसी के साथ continuation में नहीं है, ये पूरी तरह से discrete है। अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक नाम दिया देखो, फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड K4FeCN6। अब यहाँ पे FeCN6 4- जो है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है किसके साथ, आयोनाइजेबल पोटेशियम आयन के साथ, रिप्रेजेंटिंग काउंटर आयन। कंपाउंड जैसे आयोनाइज हो रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये देखो आयोनाइज हो गया 4K प्लस एंड FeCN6 4-। तो यहां पे इसका आयोनाइजेशन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है फॉर 1 मार्क। देन इसके बाद आता है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो चार्ज नंबर हम देख लेंगे, यहाँ पे कैसे दिया है देख लो, FeCN6 4- हैज चार्ज नंबर ऑफ 4- और -4, यहाँ 4- है, वहां पे -4। तो अब आप इसको कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं Fe का, तो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है -4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe एंड प्लस चार्ज ऑफ लिगैंड्स। तो अब इसको कैलकुलेशन पार्ट में लेके जाइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस 6 इंटू चार्ज ऑफ साइनाइड आयन, यहाँ पे 6 है, तो साइनाइड में -1 पे चार्ज है, तो यहाँ पे हो गया आपका -6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe का कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ का -4 और यहाँ का +6, तो -4 + 6 हो गया +2। तो इसमें जो है ये आपका आ गया Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये क्वेश्चन आप 1 मार्क के लिए एक्सपेक्ट करेंगे पेपर में। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन जैसे कोबाल्ट है यहाँ पे, तो कोबाल्ट टेट्रा अमोनियम क्लोराइड आयन यहाँ पे दिख रहा है अपने को, तो इसमें 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, 2 क्लोराइड आयंस है, तो टोटल 6 लिगैंड्स है, हेक्साडेंटेंट है ये, अटैच टू कोबाल्ट आयन। अब यहाँ पे ऑल दीज आर मोनोडेंटेट सिंस ईच हैज ओनली 1 डोनर एटम। जैसे यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन है, क्लोराइड में क्लोरीन है, बाकी दूसरा कोई एलिमेंट है जो डोनेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मोनोडेंटेट। Then we have, there are 6 donor atoms in the complex. So coordination number of cobalt 3+ ion in the complex is 6. कैसे पता चला, क्योंकि 6 अदर लिगैंड्स के साथ वो अटैच है, तो उसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अलग, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग। तो यहां पे आप देखना, फॉर योर प्रैक्टिस कंसिडर द बाइडेंटेट लिगैंड। यहाँ पे C2O4 2- है और इथाइल डायामाइन है, द कॉम्प्लेक्स इज FeC2O4 3 एंड कोबाल्ट इथाइल डायामाइन 3 हैव 3 बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह से आपको लिगैंड फॉर्म हो रहा है। तो ये रहा आपका coordination number of metal ion in a complex is the number of ligand donor atoms directly attached to it or the number of electron pair involved in the coordination bond। ये वाले चैप्टर से जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो होता है IUPAC नोमेनक्लेचर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो हम इसमें देखेंगे। यहां पे कुछ टर्म्स है, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स,
तो combination of two or more stable compounds in the stoichiometric ratio can give two types of substance, namely double salt and coordination complex. तो double salt क्या है? A double salt dissociate in water completely into simple ions. For example, देखो more salt, more salt में देखना यहाँ पे FeSO4 है और यहाँ पे NH4SO4, तो फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया डबल सॉल्ट। तो डिसोसिएशन इसका दिखाना है। इसके अलावा कार्नलाइट है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अगेन ये डबल सॉल्ट है। एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देखना, अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर विथ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखना पोटेशियम आयन साइनाइड है, तो इसका डिसोसिएशन में एक है काउंटर आयन जो कि सिंगल सेपरेट आयन है और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आप बोर्ड में बिल्कुल एक्सपेक्ट करना, वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये कंफर्म आप पेपर में देख सकते हो। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो आप देखना। फर्स्ट पोस्टुलेट, अनलाइक मेटल सॉल्ट, द मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी जो कि आयोनाइजेबल वैलेंसी है और सेकेंडरी जो कि नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? द आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज व्हिच सैटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसीज आर जनरली सैटिस्फाइड बाय एनायंस। देन थर्ड पोस्टुलेट है, द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज व्हिच सैटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसीज एंड आर नॉन आयोनाइजेबल। तो पोस्टुलेट 2 में क्या है? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, एंड पोस्टुलेट 3 में क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी के बारे में फर्स्ट पोस्टुलेट में डिस्कस किया हुआ है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स्ड स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल नहीं स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन। तो टू स्फीयर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो कैसे दिखाया है, देखना कोबाल्ट सेंट्रल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है एंड 3 क्लोराइड आयंस है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो कि सेकेंडरी है, नॉन आयोनाइजेबल है, और यहाँ पे देखो ये आयोनाइजेशन हो रहा है प्राइमरी स्फीयर। तो दो स्फीयर दिख रहा है आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं इसमें। 1 mole of a purple colored complex cobalt chloride and ammonia on treatment with excess silver nitrate produces 2 moles of silver chloride. Write the formula of the complex if the coordination number of cobalt is 6. तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखो 1 mole of complex gives 2 moles of AgCl. तो 1 mole से 2 moles आ रहा है, इसका मतलब है it indicates that 2 chloride ions react with Ag plus ions. 1 mole से 2 mole आया तो 2 क्लोराइड आयंस रिएक्ट करेंगे। द कॉम्प्लेक्स हैज 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस। तो फॉर्मूला क्या बना? कोबाल्ट से 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, 1 क्लोराइड आयन विथ 2 क्लोराइड जो कि आयोनाइजेबल है वहां पे लिखा हुआ। तो इस तरह से आपको उसका फॉर्मूला गेस करना है। यहां पे स्ट्रक्चर की बात होगी, ज्योमेट्री की बात होगी कॉम्प्लेक्स की। A complex with coordination number 6 has octahedral structure when 4 coordinating groups are attached to the metal ion, and the complex would either be with square planar or tetrahedral structure. तो देखना कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी 6 लिगैंड्स हैं तो 4 in a plane, 1 above the plane and 1 below the plane. तो 4 face above the plane, 4 फेस बिलो द प्लेन, इस तरह से टोटल 8 फेसेस आएंगे, इसलिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। एंड 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स अगर आ रहा है तो वो या तो वो स्क्वायर प्लेनार होगा या तो वो टेट्राहेड्रल होगा। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं अभी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ओनली 1 टाइप ऑफ लिगैंड सराउंड द कोबाल्ट आयन। देखो यहाँ पे सारे के सारे लिगैंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स ही है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में
देखना यहाँ पे अमोनिया के साथ क्लोराइड आयंस भी है, तो 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है, तो होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक, ये 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको दिखेंगे। तो यहां से आप उसको स्टडी कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, तो चार्ज क्या है, तो कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर एनियोनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बहुत ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये कैटियोनिक है और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनियोनिक है, और न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अभी हमारे पास जो है दो बेसिस है। एक तो टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, तो होमो एंड हेट्रोलेप्टिक, एंड डिपेंडिंग ऑन द चार्ज वी हैव कैटियोनिक, एनियोनिक या फिर न्यूट्रल। अब आते हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन आपको श्योर 1 मार्क के लिए मिलता है, वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो जरा इसके रूल्स आप देख लेना क्या है। सबसे पहले, इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेम द लिगैंड फर्स्ट एंड देन द मेटल। The names of anionic ligands are obtained by changing the ending "ide" to "o" and "ate" to "ato". The name of a complex is one single word. There must not be any space between different ligand name as well as between ligand name and the name of metal. पूरा कंटिन्यूस एक नेम रहेगा, कोई स्पेस, कोई हाइफन वगैरह उसमें यूज नहीं करना है। After the name of the metal, write its oxidation state in Roman number which appears in parentheses without any space. If complex has more than one ligand of the same type, तो हम उसके लिए यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, आगे जो भी आएगा उसके हिसाब से। For the complex having more than one type of ligands, they are written in an alphabetical order. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहां पे लिखा था फॉर हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगैंड्स, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है। जैसे आप नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के लिए IUPAC सिस्टम में थे, वैसे ही बेसिक यहां पे भी है। तो यहां पे देखना IUPAC नेम ऑफ एनियोनिक एंड न्यूट्रल लिगैंड्स कैसे लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले एनियोनिक लिगैंड है ब्रोमाइड, देखो नेगेटिव है ब्रोमाइड, IUPAC नेम ब्रोमो, और यहां पे क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ये बहुत ही बेसिक है, सिंपल आपको पता है। जैसे यहां पे आप आएंगे, देखो सल्फेट, यहां पे हमने ये पढ़ा था ना, कहा गया ये देखो, अगर आइड है तो O लिखना है, एट है तो एटो लिखना है। तो बस वही यहां पे देखना, आइड है तो O लिखा तो ब्रोमाइड से ब्रोमो, क्लोराइड से क्लोरो, हलाइड से हेलो। यहां पे देखना साइनाइड से साइनो, लेकिन सल्फेट है तो सल्फेटो, नाइट्रो तो नाइट्रेटो। ठीक है, यहां पे देखना कार्बोनेट, कार्बोनेटो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो। इसको याद रखेंगे आप सब लोग। इसमें न्यूट्रल लिगैंड के लिए आप देखेंगे तो यहां पे जैसे अमोनिया है तो अमाइन, प्लीज याद रखना, नोट द स्पेलिंग अमाइन। जो नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइन आप पढ़ते हो AMINE है, वो यहां पे नहीं करना, इट इज अमाइन। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बोनिल, वाटर तो एक्वा, एंड EN लिखा इथिलीन डायमाइन, तो प्लीज यहां देखना इथिलीन डायमाइन लिखा है, वहां पे इथिलीन डायमाइन विदाउट स्पेस है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप सब लोग। इसके बाद IUPAC नेम ऑफ मेटल इन एनियोनिक कॉम्प्लेक्स, तो देखो मेटल का नाम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, गोल्ड, गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो ऑरम, तो वहां से आ गया ऑरेट, मैंगनीज, मैंगनेट, प्लैटिनम, प्लैटिनेट, सब में 8 लगाना है आपको, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है ये। अब आते हैं IUPAC नेम ऑफ सम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, एनियोनिक कॉम्प्लेक्स में देखना, यहाँ पे नाम कैसे देखोगे, सेंट्रल मेटल क्या है, निकेल है, और लिगैंड क्या है, साइनाइड है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे, लिगैंड का नाम लिखेंगे, और कितना है 4 है,
तो टेट्रासाइनो, साइनाइड था ना, साइनाइड से साइनो, और क्या बना, निकेल। मेटल का नाम है ना, जैसे यहाँ पे गोल्ड वगैरह था, 8 आ रहा, देखो निकेल, निकेलेट, तो यहाँ पे टेट्रासाइनो निकेलेट, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेंशन कर दो रोमन नंबर में। रोमन नंबर हमेशा पैरेंथेसिस में रहेगा, ब्रैकेट्स में। अगेन ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे C2O4 है, कोबाल्ट है, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे ट्राई, सी 3 टाइम्स, ये ऑक्जेलेट है, तो 3 ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट एंड 3 रोमन नंबर में। FeCN6 है, साइनाइड है, साइनाइड है तो साइनो हेक्सासाइनोफेरेट, आयरन है वो, लेकिन आपको पता है उसका लैटिन नेम फेरम है, तो यहां पे आ गया फेरेट, यहां देख लो फेरेट। कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन एंड मेटल कैटायंस, उसको आप देखेंगे अभी यहां पे, तो इसमें तो एनियोनिक कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन एंड मेटल कैटायन भी, देखो यहाँ पे मेटल कैटायंस अलग से यहाँ पे दिख रहा है, तो नाम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले मेटल कैटायन मेंशन करो, सोडियम, पोटेशियम, अगेन सोडियम, ठीक है। इसके अलावा आप देख लेना लिगैंड क्या है, यहाँ पे 636 है, यहाँ पे देखो हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, यहाँ पे 3 टाइम्स क्या है, ऑक्जेलेट है, तो देखो ट्राई ऑक्जेलेटो, और मेटल है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनेट, और यहां पे अगेन सोडियम आ गया, और यहां पे देखना सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। एक चीज और नोटिस करना है आपको, जब आप एनियोनिक कॉम्प्लेक्स या कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो एट द एंड आप आयन मेंशन करते हैं, बट यहां पे आयन मेंशन नहीं करना है। देखो कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स लिखना है तो कॉपर सेंटर है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, 4 टाइम्स है, तो टेट्रा, यहां पे प्लीज देखना अमाइन, प्लीज नोट द स्पेलिंग, टेट्रा के बाद को ए के बाद ए लिखा हुआ है, सिंगल ए नहीं है वहां पे, टेट्रा अमाइन कॉपर आयन, 2 क्यों लिखा, बिकॉज 2 प्लस है। अगेन यहां पे देखना, ये नाम देखना, 5 टाइम्स वाटर है, तो वी हैव पेंटा, देन एक्वा, उसके बाद ये वाला देखना, ये जो है ये क्या है, यहां पे आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, और फिर फेरेट, यहां पे आयरन लिखा है, आप वहां पे फेरेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ये वाला देखना, अगेन देखो SCN है, NCS है तो अलग है, और SCN है, देखना यहां पे प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम लिख दिया, EN, आपको पता है इथिलीन डायमाइन को EN लिखते हैं शॉर्ट में, SCN है यहां पे डायथायोसाइनो साइनेटो, 2 टाइम्स है ना, डाई। अब इसमें ये जो नाम आप देखेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन, तो ये बहुत सारी कैटेगरी है, आपको पूरा फोकस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में इस टेबल पे रखना है, ठीक है। टेबल है आपका 9.3, बहुत ही ज्यादा ध्यान देके इसको पढ़ना है, समझना है। ऐसे ही आप नाम देखेंगे तो यहां पे देखना प्लैटिनम सेंट्रल एटम है, बाकी सब लिगैंड्स है, ब्रोमाइड और अमोनिया मॉलिक्यूल, साथ में ब्रोमाइड आयन अलग से है, तो अपने पास 4 अमोनिया है, तो टेट्रा अमाइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर वी हैव डाई ब्रोमो प्लैटिनम, और उसके बाद फिर ब्रोमाइड अलग से लिखा है, तो ब्रोमाइड हमने लिख दिया। ये 4 और 3 कहां से आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना होता है। देन अगेन यहाँ पे कोबाल्ट है, 5 टाइम्स अमोनिया है, तो पेंटा अमाइन, और यहाँ पे 3 टाइम्स है, देखो कार्बोनेट, तो CO3 है तो कार्बोनेट हो गया वो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, और फिर कोबाल्ट क्लोराइड। सेम अगर इसको लिखना रहे तो 1 टाइम है एक्वा एंड 5 टाइम्स है अमाइन। अब एक्वा और अमाइन दोनों ए से स्टार्ट होता है, लेकिन एक्वा और अमाइन तो ऑब्वियसली पहले अमाइन आएगा, तो पेंटा अमाइन
एक्वा कोबाल्ट और फिर आयोडाइड। लास्ट में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपने पास नाम कैसे आएगा, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है तो प्लीज देख लो। कोबाल्ट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि नाइट्रो ग्रुप आता है, इसलिए हम नाइट्रो मेंशन करेंगे उसको। एंड देन वी हैव अमोनिया मॉलिक्यूल 3 टाइम्स, तो वी हैव ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। और फिर FeCO5 है तो कार्बोनिल है, देखो CO है तो कार्बोनिल कितना 5, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन। और फिर RH रोडियम के लिए है वो 3 टाइम्स अमोनिया एंड 3 टाइम्स थायोसाइनाइड। तो यहां पे नाम कैसे लिखा, अगेन ट्राई अमाइन ट्राई थायोसाइनेटो रोडियम। तो आई होप आप ये टेबल अच्छे से रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो है यहां पे ये आता है, एक कैलकुलेशन के लिए आएगा एक क्वेश्चन आपको, जो कि है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखना इसमें स्टेबिलिटी की बात की जाती है। EAN दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो इक्वल करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। तो इसमें इसका स्टेटमेंट आप देख लेना कैसे, फॉर्मूला क्या है EAN का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड्स। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दूसरा आप क्या देख सकते हो, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल टू फॉर्म द आयन एंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। तो दोनों फॉर्मूला एक ही चीज मेंशन करता है। यहाँ पे हम आयन की डायरेक्ट बात करते हैं, यहाँ पे हम मेटल की बात करते हैं। तो फॉर्मूला है Z माइनस एक्स प्लस वाई, जिसमें Z है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, वहां पे X जो है ऑब्वियसली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल, और Y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगैंड्स। इसलिए जब लॉस हो रहा है तो माइनस में है और जब गेन हो रहा है तो प्लस में है। इसको समझने के लिए यहाँ पे जरा देख लीजिए, कंसिडर कोबाल्ट, यहाँ पे नाम अगर देखना रहे तो हेक्साअमाइन कोबाल्टेट आयन है, ये 3+ आयन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट यहाँ पे 3+ है, और 6 लिगैंड्स जो हैं वो डोनेट करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, जो कि 27। यहाँ पे कितने यहाँ पे 3+ का चार्ज है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितना है 3, और गेन कितना हुआ, लिगैंड 6 लिगैंड्स है तो 2 फ्रॉम ईच, तो हो गया टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ है लिगैंड से। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला अप्लाई किया और अपने को मिल गया अपना आंसर। विद इन अ मिनट आपके लिए मैं बोल रहा हूं, यहां पे जिंक और ये जो फेरस या आयन है उसके कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, एनी ऑफ दिस, ठीक है, विद इन अ मिनट।
ओके, सो वी हैव दीज टू कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग उसको देख लेंगे अभी। तो कॉम्प्लेक्स है हमारा Zn NH3 4 times, overall charge on the complex is 2 plus, जिसमें हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, ओके, यह है +2, देन number of electrons from ligands, कितना है यहाँ पे? 4 ligands हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8। तो हम लोग नंबर दिखाते हैं इसमें। Y के लिए 8, तो इसमें जो है X हम लिख लेंगे, वो है 2, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, वो है अपना जिंक है तो कितना? 30, तो Z इज इक्वल टू 30। तो नाउ वी हैव द कैलकुलेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ओके, ऑफ जिंक 2 plus is equal to Z minus X plus Y. So we have 30 minus 2 plus 8. So obviously we have 36. So effective atomic number of zinc 2 plus is 36. ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते ही हैं, तो प्लीज आप इसको प्रैक्टिस कर लेना ये चैप्टर से। सेकंड जो इसमें है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe हमें देखना है इन द कॉम्प्लेक्स FeCN6। ये एनियॉनिक कॉम्प्लेक्स है विथ 4 माइनस चार्ज। तो सबसे पहले हम यहां देख लेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, जो कि हम डिनोट करते हैं Z से। तो एटॉमिक नंबर Fe का कितना है? 26। इसके अलावा और क्या मालूम होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। Fe कितना है यहाँ पे? 4 माइनस है ना, ओके, लेकिन हमें पता है कि Fe कितना होता है? +2, ठीक है। तो यहाँ पे X इज इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगैंड, कितने लिगैंड है यहाँ पे? 6, तो 6 2 ज़ा 12। So in this case, effective atomic number of Fe2 plus is equal to Z minus X plus Y, 26
2 plus 12. Okay, answer is 36. Okay. ऑल दीज कैलकुलेशंस और नोट्स जो भी है वो आपको लिंक में मिल जाएगा. सो यू डोंट हैव टू कॉपी एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड नाउ. यू जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड यहाँ पे हम क्या आपको बता रहे हैं. ओके okay? यहां पे जरा देखना. These two are complexes, some examples of coordination compound which obey the EN rule. Certain other coordination compound do not obey effective atomic rule. जो कि ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखना. एग्जाम्पल Fe का कॉम्प्लेक्स है और कॉपर का कॉम्प्लेक्स है. उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो 35 है. तो प्लीज उसको याद रखना. इसके बाद जो है अपने पास टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो आइसोमेरिज्म का यह चार्ट याद रखना आप लोग. ये आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा आपको. आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या फिर इसको हम डायस्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं. और ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो उसको हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं. जब हम बात करते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो हमारे पास यहाँ पे लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर एंड सॉल्वेट आइसोमर्स की बात होती है. ये वाला पार्ट याद रखना. If the effective atomic number is equal to 18, 36, 54 or 86, then the effective atomic number rule is obeyed. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज याद रखना, क्योंकि ये सब जो है ये हमारे जो नोबल गैसेस है उनके एटॉमिक नंबर को जो है वो मैच करते हैं. अदरवाइज जैसे यहाँ पे आपने देखा अभी ये 35 आया, तो इसका मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे नहीं करता. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट होगा लेकिन वो उस रूल को ओबे नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास वो नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 18, 36, 54 या 86. अगर ये आ रहा है तो वो रूल ओबे कर रहा है, अदरवाइज नहीं. तो आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लेना वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. Within a short break, I'll continue.
So we'll continue with the topic, that is isomerism in coordination compounds. So see here, we have isomerism as one of the interesting aspects of coordination chemistry is existence of isomers. Okay, because see होता क्या है यहाँ पे, लिगैंड्स अटैच है ना सेंट्रल एटम को, तो लिगैंड्स के पोजीशन के हिसाब से जो है आपको वहां पे आइसोमर्स फॉर्म होंगे। तो आइसोमर्स आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप के, एक तो स्टीरियो आइसोमर्स जो और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो वी हैव in terms of stereoisomers, in terms of stereoisomers, see, stereoisomers have the same link among constituent atoms, however the arrangement of atoms in space are different. तो यहाँ पे हमको जब stereoisomers की बात होगी तो हमें मिलेगा geometric isomers या फिर डायस्टीरियोआइसोमर्स एंड इनैंशियोमर्स, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जरा देखना उसको। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या डायस्टीरियोआइसोमर्स में आपको मिल जाएगा सिस आइसोमर या फिर ट्रांस आइसोमर। एकदम क्लियर है, आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन और आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्यूपाई द ऑपोजिट पोजीशन। तो यहां पे आप देखना सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर, और इसको कंसीडर करते हैं यहां पे सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वेयर सिस ट्रांस आइसोमर्स इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनार एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें टेट्राहेड्रल में नहीं है, ये ध्यान रखना आप। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस में आप देख लो, the square planar complex of Ma2B2 and Ma2BC, B2 की जगह पे BC है, type exists as cis and trans isomers where A, B and C are monodentate ligands, ठीक है, where M is metal, ठीक है, for example platinum ammonium chloride। तो नाम IUPAC मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, वो अलग है, वो आपको पता है। इसमें टाइप क्या मिला, Ma2B2, प्लीज ध्यान दीजिएगा, Ma2B2। ओके, तो यहां पे सिस आइसोमर में लिगैंड्स जो है आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑन एडजेसेंट साइड है, ट्रांस आइसोमर में वो ऑपोजिट साइड है। बहुत ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहां देखना, ये वाला आपको याद रखना है, the cis isomer is more soluble in water than the trans isomer। क्यों, देखो, the cis isomer named cisplatin is an anti-cancer drug while the trans isomer is physiologically inactive। तो फिर the cis isomer is polar with non-zero dipole moment, but यहाँ पे trans isomer has zero dipole moment as a result of two opposite platinum chloride and two opposite platinum ammonia bond moments which cancel each other। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कि सिस आइसोमर पोलार है और ट्रांस आइसोमर नॉन पोलार है, जबकि वहां पे पोलैरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन नेट डायपोल जीरो है किसमें, ट्रांस आइसोमर। तो जरा देखिएगा यहाँ पे प्लैटिनम अमोनिया वाटर क्लोराइड है यहाँ पे। अब ये आ गया Ma2BC टाइप। जब हम यहां देख रहे थे तो ये था Ma2B2 टाइप, अब यहाँ पे B के अलावा C भी आ गया है, इसलिए Ma2 और फिर BC टाइप। अगेन देखिएगा, ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है। तो इसमें 4 कोऑर्डिनेट
tetrahedral complexes do not show cis and trans isomer. टेट्राहेड्रल में ये नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ किस में मिलेगा, स्क्वायर प्लेनार में या फिर ऑक्टाहेड्रल में। तो यहाँ पे हमने किस में देखा था, स्क्वायर प्लेनार में देखा था, अब यहाँ पे हम किस में देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखना जरा, सिस एंड ट्रांस आइसोमर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप, अब कैसे मिलेगा ऑक्टाहेड्रल में, Ma4B2 Ma4BC, B2 की जगह पे BC और A4 की जगह पे MAA2B2 एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर, जिसमें AA क्या है, बाइडेंटेट लिगैंड है। आप प्लीज एग्जांपल देखिए इसका, वी हैव कोबाल्ट अमोनिया एंड क्लोराइड जो कि टाइप आ गया Ma4B2। अब इसमें सिस और ट्रांस कैसे है, तो देखना, जो आइडेंटिकल लिगैंड्स है वो सब एडजेसेंट है, और ट्रांस में आइडेंटिकल लिगैंड्स देख लो, एक पेयर उसका ऑपोजिट है, इसलिए वो ट्रांस हो गया। अब इसमें देखना, जैसे Ma4B2 था, अब ये देखो प्लैटिनम अमोनियम क्लोराइड ब्रोमाइड, तो यहाँ पे M है, A4 है और BC हो गया, यहाँ पे B2 था, ये BC हो गया। तो अगेन सिस में एडजस्ट, जो आइडेंटिकल है वो देखो एडजेसेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगैंड्स हैं, तो ऑब्वियसली एडजेसेंट है, लेकिन ट्रांस में ऑपोजिट है। यहां पे भी देखना ऑपोजिट है वो साइड पे। तो इसमें अब उसके बाद क्या आ गया, MAA2B2 टाइप। तो MAA2B2 टाइप अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट इथेन डायमाइन है यहाँ पे, तो ये प्लीज आप देख लेना, इथिलीन डायमाइन। तो सिस आइसोमर एडजेसेंट टाइप में है, और बना कैसे देखना, ये बाइडेंटेट है, प्लीज देखना, ये बाइडेंटेट है यहाँ पे, तो इसलिए ये एडजेसेंट है, यहाँ देखो ऑपोजिट है। तो सिस और ट्रांस समझने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो क्या आप ये ड्रॉ कर सकते हो, इफ यस देन प्लीज ड्रॉ। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसको हम इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं, तो इसमें देखना, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो उसको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कायरल, मतलब अ मोर एलोबरेट डिस्कशन, ये तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी में मिलेगा जो कि HTA चैप्टर में है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो देख लो ये डिटेल क्या है, enantiomers have identical properties, however differ in the response to the plane polarized light. The enantiomer that rotates, ये तो आपको पता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करता है वो क्लॉकवाइज है, तो उसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और जो लेफ्ट में रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज उसको लीवो आइसोमर बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लेना, कोबाल्ट, यहाँ पे इथिलीन डायमाइन है, 3 टाइम्स है, तो स्ट्रक्चर कैसे बना, सेंट्रल एटम कोबाल्ट, और ये बाइडेंटेट लिगैंड है, तो दोनों का ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स दिख रहा है इसमें, इनैंशियोमर्स। तो डी डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों फॉर्म यहां पे दिख रहा है। यहां पे भी आप देख लीजिएगा। अब ये सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर कैसे है, तो इसमें दोनों आ गया, देखो एडजेसेंट साइड पे है इसलिए सिस है, DNL, ट्रांस है तो अपोजिट साइड पे है। सो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो एनैंशियोमर्स सिंस दे हैव मिरर प्लेन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल में ही आपको ये देखने को मिलेगा, स्क्वायर प्लेनार में नहीं मिलेगा। इसके बाद है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पोजेस, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पोजेस डिफरेंट लिंकेजेस अमंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड हैव देयर केमिकल फॉर्मूले टू बी द सेम।
तो यहाँ पे क्लासिफाई करना है लिंकेज आइसोमर्स। तो लिंकेज आइसोमर्स कहाँ पे है? These isomers are formed when the ligand has two different donor atoms. It coordinates to the metal via different donor atoms. Thus, the nitrite ion NO2 minus having two donor atoms show isomers as, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे दो आइसोमर्स कैसे हैं, क्योंकि दो डोनर एटम है ना, NO2 में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो NO2 या ONO ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये दोनों आइसोमर्स हो गए। The nitro complex has cobalt nitrogen bond and the nitrito complex is linked through cobalt oxygen. नाम जरा देखना, नाइट्रो एंड नाइट्रोटो, तो इसको अपन लिंकेज आइसोमर बोलेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमर आता है उसके बाद। तो आयोनाइजेशन आइसोमर में अपने को दिखता है, इसमें आयोनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, कोबाल्ट, अमोनिया और सल्फेट यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको ही हमने क्या किया, ये सल्फेट और ये ब्रोमाइड आयन जो है देख लो, ये इंटरचेंज हो गया, तो इसको हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे। सेम यहां पे देखना, दिस कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन आयोनाइज टू गिव डिफरेंट आयंस। तो पहले इसको आप देख लो, तो ये आपको दो अलग अलग आयन दे रहा है, इसलिए ये हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में आपको मिल जाएगा इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कैटियोनिक एंड एनियोनिक स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो यहाँ पे देखना, ये कैटियोनिक और ये एनियोनिक है, तो इसने इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे क्रोमियम का जो है वो कैटियोनिक बन गया अमोनिया के साथ और कोबाल्ट का एनियोनिक बन गया साइनाइड के साथ। तो इंटरचेंज हो रहा है किसमें, कैटियोनिक और एनियोनिक कॉम्प्लेक्स में, तो इसको अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे। सॉल्वेट आइसोमर यानी उसको हम हाइड्रेट आइसोमर्स व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट। तो इसमें देखना, दीज आर सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमर्स। यहाँ पे क्रोमियम, वाटर और क्लोराइड है, देखो क्रोमियम, वाटर और क्लोराइड यहाँ पे है, लेकिन नंबर जरा चेक करना, यहाँ पे हेक्सा एक्वा है, यहाँ पे पेंटा एक्वा है, और वन वाटर मॉलिक्यूल वहां पे एक्सचेंज हो गया है। तो इस तरह से ये हो गया आपका सॉल्वेट आइसोमर। इसके बाद आते हैं टॉपिक जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देख लीजिएगा स्टेबिलिटी कैसे मिलता है। द स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय नोइंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। तो द स्टेबिलिटी इज गवर्न बाय मेटल लिगैंड इंटरैक्शंस। तो इंटरैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे दिया है, इन दिस द मेटल सर्व्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऑब्वियस सी बात है, मेटल जो है वो आयन फॉर्म किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द लिगैंड। व्हाइल द लिगैंड एज लुईस बेस, आपको याद होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में लुईस बेस हम किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो शेयर है उसको क्या करता है, वो डोनेट करता है, तो उसको हम लुईस बेस बोलते हैं। द मेटल लिगैंड इंटरैक्शन कैन बी रियलाइज्ड एज लुईस एसिड लुईस बेस इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्गर द इंटरैक्शन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो यहां पे देखिएगा इक्विलिब्रियम दिया है मेटल लिगैंड इंटरैक्शन का, तो मेटल और लिगैंड का इंटरैक्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। तो अब जो है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही इक्विलिब्रिया जो है हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा प्लीज चेक कीजिए। एंड इसके बाद आता है स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर्स विच गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला फैक्टर है अपने पास चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन। तो हायर द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। कैसे, किसका रेशियो बोला है, चार्ज टू साइज, चार्ज एंड देन साइज। तो जितना ये ज्यादा होगा रेशियो उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, यानी चार्ज ज्यादा और साइज कम। तो इसमें आप देख लीजिएगा, फॉर द डाइवैलेंट मेटल आयन complexes their stability shows the trend copper, then nickel, then cobalt, then Fe, then manganese, then cadmium. The above stability order
इज कॉल्ड इविंग विलियम ऑर्डर। और यहां पे आप देख लेना, कॉपर एंड कैडमियम दोनों का चार्ज +2 पे है, बट आयोनिक रेडियस ऑफ कॉपर इज 69 पिकोमीटर, बट कैडमियम का 97 पिकोमीटर है। तो चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैडमियम, देयरफॉर कॉपर का जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा देन कैडमियम। सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिगैंड। जब हम मेटल आयन की बात करेंगे तो क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा, वो है चार्ज टू साइज रेशियो। नेचर ऑफ लिगैंड की बात करेंगे तो सेकेंड फैक्टर आता है जहां पे हम नेचर देखते हैं कि हाउ इजीली द लिगैंड कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ द लिगैंड। तो इसका मतलब है द लिगैंड दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस टेंड टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो जब हम मेटल आयन की बात करेंगे तो वहां पे चार्ज टू साइज रेशियो होगा, और जब हम बात करेंगे लिगैंड की तो उनकी बेसिसिटी की बात होगी। हाईली बेसिक होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। इसके बाद बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस है। ओके तो थियरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपको पता है कि ये वैलेंसी पे फोकस करता है, किस तरह से जो हम कंपाउंड देखते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल या कोई एक अदर एलिमेंट होता है जो अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, वो थ्योरी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस है। तो उसको हम समझ रहे हैं यहाँ पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसके स्टेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद लिगैंड्स, पहला स्टेप। दूसरा, द वैकेंट डी ऑर्बिटल अलोंग विद s and p ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। The number of vacant hybrid orbitals formed is equal, ये जरा याद रखना, the number of vacant hybrid orbitals formed is equal to number of ligand donor atoms surrounding the metal ion, which equals the coordination number of metals. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने फॉर्म होंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल के इक्वल होंगे। ओवरलैप होगा बिटवीन द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड filled orbitals of ligand leads to formation of metal ligand coordination bond. Then we have the hybrid orbitals used by the metal ion point in the direction of ligand, जो कि हम लोग obviously arrow से denote करेंगे, from the metal to ligand हम arrow show करते हैं। And then the n-1d or nd orbitals used in hybridization allow the complexes to be classified as inner orbital or आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट डिसाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका D2sp3 या फिर sp3d2 भी बोल सकते हैं उसको, द स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। तो देखिएगा स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द मेटल लिगैंड बॉन्डिंग, क्या क्या इंक्लूड करना है उसमें आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, राइट वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्री मेटल आयन। उसके बाद वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन, एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहां पे D4 D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व होता है। फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगैंड फाइंड द नंबर ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग, देन आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रिवेल करता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एंड शो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देन यू हैव डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड देन प्रेडिक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स।
तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, लो स्पिन है। तो सबसे पहले हम क्या फाउंड करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट जो कि +3 पे है। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देख लो, आपको याद होगा ये 3d6 पे है। नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड देख लीजिएगा, यहाँ पे 6 है, तो नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड इज 6, so number of vacant metal ion orbital required for bonding with ligand must be 6. ठीक है, तो complex is low spin, so pairing of electrons will take place prior to hybridization. पहले जो है वो pairing of electrons होगा, तो यहाँ पे electronic configuration after pairing would be, तो ये जो unpaired electrons है इसका pairing होगा पहले। इसके बाद हमें क्या देखना है, 6 orbitals available for hybridization, 1 2 3 4 5 6 are 2 3d, 1 4s and 3 4p orbitals। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर अपना हाइब्रिडेशन क्या बना, d2sp3। ओके, एंड the orbitals for hybridization are decided from the number of amine ligands which is 6. So here n-1 d orbitals participate in hybridization since it is the low spin complex. And finally electronic configuration after complex formation, तो यहाँ पे देख लेना ये आपका d2sp3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हो गया वो कॉम्प्लेक्स हेक्साअमाइन कोबाल्टेट 3+। अब यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है, देख लीजिएगा यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो मैग्नेटिक नेचर या प्रॉपर्टी क्या होगा, तो आप देख लो डायमैग्नेटिक है। और अगर वो हाई स्पिन में है तो हाई स्पिन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए +3, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो 3d6, 6 फ्लोराइड लिगैंड्स है वहां पे, तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है आपको 6 चाहिए। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, लो स्पिन अगर था तो पहले क्या था, पहले पेयरिंग हुआ, हाई स्पिन है तो मींस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड रिमेन द सेम एज इन द फ्री स्टेट शोन अबव, जैसे यहाँ पे वैसे वहां पे, वो पेयरिंग नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर, लो स्पिन है तो पहले पेयरिंग करो, हाई स्पिन है तो पेयरिंग मत करो। Six orbitals available for the hybridization are 1 4s, 3 4p and 2 of 4d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3d2, उधर क्या था d2sp3, यहाँ पे क्या है sp3d2। तो यहाँ पे 6 vacant sp3d2 hybrid orbitals of cobalt 3+ overlap with 6 orbitals of fluoride forming कोबाल्ट फ्लोराइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लो sp3d2 है और कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल है एंड हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सी हियर वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे इसका नेचर क्या बना, पैरामैग्नेटिक। ऑक्टाहेड्रल के बाद अपने पास है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देख लो यहाँ पे 4 क्लोराइड आयंस है विथ निकल के साथ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 पे है। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकल 2+, अगर देखोगे तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो। नंबर ऑफ क्लोराइड लिगैंड्स इज 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल्स कितना चाहिए, 4। तो 4 ऑर्बिटल्स ऑन मेटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर 1 4s and 3 4p हाइब्रिडाइजेशन के लिए। द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल। ओके, तो देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 आया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। द 4 मेटल आयन ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग विद क्लोराइड लिगैंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे मिल गया 4 वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ निकल ओवरलैप विद 4 ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। तो आप ओवरलैपिंग दिखा दो कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, sp3 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक है।
और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो टेट्राहेड्रल शेप दिखा दो। वही अगर स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है तो अगेन निकल का कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करो, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है आपको। तो अब यहाँ पे कितना है, ये 4 है, तो आपको 4 ऑर्बिटल्स चाहिए ओवरलैप करने के लिए। तो ऑब्वियसली कैसे मिलेगा, कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, सो निकल 2+ आयन यूजेस dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे ये पेयरिंग होगा, ये जो है ये पेयरिंग होगा यहाँ पे, तो पेयरिंग हो गया, एक d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला, dsp2 आपको दिखना है वहां पे। तो देख लो, ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर 1 3d, 1 4s एंड 2 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन मिल गया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। Finally, 4 vacant dsp2 hybrid orbitals of nickel 2+ overlap with 4 orbitals of cyanide ions to form nickel cyanide coordinate bonds. Configuration दिखाइए और उसके बाद स्ट्रक्चर दिखाइए, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनार है तो आपको एक प्लेन में ये लिगैंड्स को दिखाना है। ओके, और यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए फाइनली आपको मेंशन करना है there is no unpaired electron, so the complex is diamagnetic. इसके बाद है limitations of VBT। तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी देख लो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इट डज नॉट एक्सप्लेन द हाई स्पिन और लो स्पिन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इन अदर वर्ड्स, strong and weak field nature of ligands cannot be distinguished, so it does not provide any explanation for the color of coordination compounds. Then with the structure of complexes predicted from the VBT would not always match necessarily with those determined from the experiment. तो एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड में यहाँ पे डिफरेंस है। एंड टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज हमारे पास एक थियरी है जो कि है क्रिस्टल फील्ड थियरी। उसका अजम्पशन क्या है, पहला, द लिगैंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक और देयर आर नो ऑर्बिटल इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। देन अजम्पशन देखिएगा, इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन the 5 d orbitals जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है have the same energy, that is they are degenerate. Second assumption है when ligand approach the metal ion they create crystal field around the metal ion. If it were symmetrical, the degeneracy of the d orbital remain intact. Degeneracy मतलब all the d orbitals, क्योंकि एक ही शेल में ये सारे d orbitals है तो उनकी एनर्जी सेम है, तो उनको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यूजुअली द फील्ड क्रिएटेड इज नॉट सिमेट्रिकल एंड द डीजेनरेसी इज डिस्ट्रॉयड, सो द डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। तो 2 सेट्स कौन कौन सा है, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है और इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे अदर देन दीज 3। तो जब हम इसको बोलते हैं डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड तो वो T2z में आता है और बाकी दोनों के लिए हम वो EG यूज करते हैं। These 2 sets of orbitals now have different energies और इसीलिए यहाँ पे आता है separation of energies of these 2 sets of d orbitals, तो बन गया वो crystal field splitting parameter. It is denoted by delta naught and O for octahedral. अब आते हैं यहाँ पे डेल्टा नॉट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड। द लिगैंड्स आर देन क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आर दोज इन विच डोनर एटम्स आर कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड कार्बोनिल, ठीक है। देन वी हैव अमोनिया, EDTA और EN, that is ethylene diamine, are considered to be strong ligand. They cause larger splitting of d orbitals and pairing of electrons is favored. बाकी those ligands, these
to form low spin complexes. Weak field ligands are those in which donor atoms are halogens, oxygen or sulfur. तो ग्रुप 16 एंड 17 यहाँ पे है. In case of these ligands, the delta naught parameter is smaller compared to energy required for the pairing of electrons, which is called electron pairing energy. तो इस तरह से यहाँ पे strength आपको याद रखना है. The ligands then can be arranged in order of their increasing field ligands. तो halogen से obviously halogen में भी आपको ध्यान रखना है iodine, bromine, so iodide, bromide, chloride, then we have sulfide, fluoride, hydroxide, then chromate, oxalate, then aqua, फिर nitrogen, thiocyanide, EDTA, ammonia, ethylene diamine, cyanide and then carbonyl. इस तरह से ये इसका स्ट्रेंथ है. अब आते हैं इसमें splitting of d orbitals and formation of octahedral complexes. In octahedral environment, the central metal ion is surrounded by 6 ligands. Ligands approach the metal ion along the x, y and z axis. As the ligand approach the metal ion, the degeneracy of d orbital is resolved. देखिएगा जरा यहाँ पे ध्यान से, इसमें ये एनर्जी लेवल है, ये d ऑर्बिटल्स है, इसकी स्प्लिटिंग हो रही है. देखो Eg और T2z. यहाँ पे कौन कौन सा है? यहाँ पे dxy, dyz, dxz और यहाँ पे बाकी जो दो बचे dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. यहाँ पे सारे टर्म्स मेंशन किए गए हैं. टेबल ये देखना, d ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है. तो d4, d5, d6, d7 दिया यहाँ पे. तो किस तरह से उसकी स्प्लिटिंग हो रही है, हाई स्पिन क्या है और लो स्पिन क्या है आप देख सकते हैं. हाई स्पिन में स्प्लिटिंग दिख रहा है, लो स्पिन में वो साथ में है. And finally we have factors affecting crystal field splitting parameters. तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम लोग बोर्ड पेपर में कंफर्म करेंगे. देखो, मेंशन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है. यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए. राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वॉर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. राइट द नेम ऑफ हेक्साडेंटेट लिगैंड. सी यहाँ पे कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन यहाँ पे देखना, अभी जो हमने डिस्कस किया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी.
Again, we have the IUPAC name of this complex. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बोर्ड पेपर से आप रेफर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। या तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए होगा, वहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखने के लिए होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करने के लिए होगा, बैलेंस बॉन्ड थियरी से एंड वर्नर थियरी से। ये दो आप इतने टॉपिक आप ये चैप्टर से प्रिपेयर कर लो। Okay, so this was the last for the discussion of inorganic chemistry related to board exams. If you have any question related to this topic, please we'll discuss those in the next session. So now I wind up.